Hello everyone, praise the Lord. Praise the Lord. Good morning, and we bless you all in the name of Father, Son and the Holy Spirit. May the Lord bless you all. And today once again we are here to praise the name of God and glorify His name and listen from His word. So today we are going to have your morning devotion, and I request all the viewers to please join us and enjoy to be in the presence of the Lord by worshiping Him and listening from His word. So प्यारे श्रोताओं, आज आप सभी को मैं हमारी इस ऑनलाइन प्रेयर सर्विस में स्वागत करता हूं, और ये डेली डिवोशन हम सबके लिए आशीष का कारण बनेगा। आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए। परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के लिए, अपने छुटकारा को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा मेरे साथ मेरी वाइफ कविता है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। आज के इस दिन में प्रभु बहुतायत से आप सभी को आशीष कीजिए। हर एक की जरूरत, हर एक की इच्छा को पूरा कीजिए, और इस प्रेयर, इस ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा आप लोगों के दिलों को छुइए, उनसे बातें कीजिए और सभी लोग आशीष पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। Alright, so okay, here we go. We are going to sing some songs, and afterwards we'll be having prayer. Then we'll be listening from the Word of God, and believe that God is going to speak to you and bring transformation in your lives. So today's sermon is for you, to bring a deliverance for your lives, to bring a healing in your lives. So please be with us. हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ लगे रहें। परमेश्वर आपके जीवन में एक शांति को लाएगा, एक छुटकारे को लाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम लोग कुछ गीतों गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, और मैं वो कविता गाने में अगुवाई करेंगे। When He calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. In the calling, in the valleys, on the mountains, in the valleys, on the mountains, in the valley, I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. In the highways, in the byways, in the highways, in the byways, in the highways, in the byways, I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. In the college, in the high school, in the college, in the high school, in the college, in the high school, I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere
working for my Lord. I will somewhere, working I will somewhere, working I will somewhere, I will working for my Lord. Glory to God, hallelujah. Thank you and praise you, Master. Glory to God, hallelujah. Now we are going to sing one more song for the glory of God. We'll be singing a song, Visit Us, O Lord. हम एक और गीत तो गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, Visit Us, O Lord. Visit us, O Lord. Visit us, O Lord. Let your glory fall. Let your glory fall. As we wait for you. As we wait for you. Visit us, O Lord. We need the cleansing of your blood. We need the Spirit like a flood. We need the cleansing of your blood. We need the Spirit like a flood. How we long for you. How we long for you. Visit us, O Lord. Visit us, O Lord. Visit us, O Lord. Let your glory fall. Let your glory fall. As we wait for you. As we wait for you. Visit us, O Lord. We need the cleansing of your blood. We need the Spirit like a flood. We need the cleansing of your blood. We need the Spirit like a flood. How we long for you. How we long for you. Visit us, O Lord. Our Prabhu tu aa, Prabhu tu aa, महिमा दिखा, महिमा दिखा, करते हम इंतजार, करते हम इंतजार, आ प्रभु तू आ। धो दे तू अपने लहू से, भर दे तू अपनी आत्मा से, धो दे तू अपने लहू से, भर दे तू अपनी आत्मा से। चाहत है अब यही, चाहत है अब यही, आ प्रभु तू आ। Hallelujah. Thank you, Father. Glory to God. Yes, Father. Our Prabhu tu aa. Visit us, O God. Father, we thank you and praise you, Lord, for this wonderful time that you have given to us. Heavenly Father, we come to your presence, Lord. We welcome you in midst of us this morning as we are going to have our morning devotion. God, we pray, Lord, let your presence may be with us. Lord, let your holy hands may be upon our lives. Lord, we thank you for helping us to worship you with truth and spirit. And God, as we are going to pray for different concerns, for different people, God, I pray, let your ears be attentive towards our prayer, and let your eyes may be upon our lives to look unto us, O God. Hear our prayers and answer us, O God, Father. You are faithful God. You are the God who always answers our prayer. And I believe today I am going to pray for various concerns, and you are going to give us the answer of all our prayers. Lord, especially I pray for all the viewers who are going to join us and who are with us. God, I pray, Lord, you speak to them, you touch them, O God. And Lord, if anyone of having any kinds of problem, I pray let their problems will leave them in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. And also I pray if anybody is going through sickness, difficulties and different circumstances, God, I pray deliver them out of their difficulties.
problems and circumstances, oh God. They may have peace in their life. They may have amazing peace in their heart, oh God. They may experience the great peace that you have given to each and every one of us, oh God, Father. धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन किया है, हमें देख रहे हैं और हमारे इस सर्विस में ज्वाइन करने वाले हैं, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ सभी को आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे और सामर्थ्य दे। हर एक जन प्रभु छुटकारे को अनुभव करने पाए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक अद्भुत शांति को महसूस करने पाए। धन्यवाद करता हूँ पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर पिता, आमेन। Alright, once again, thank you so much for joining us, and now we are going to learn from the Word of God. And I just believe that the Word of God is going to speak to you and bring transformation in your life. So dear friends, today I am going to talk to you about peace. This is one of the well-known Bible passage which we all know about it, and we have heard so many messages and we know so many things about it. But today I am going to read this one and talk about it, and definitely I believe that God is going to speak to you, talk to you and bring transformation in your life, and you are going to experience amazing peace of God in your life. मेरे दोस्तों, जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपने शायद सुना होगा, आपने जाना होगा, कई मैसेजेस इसके बारे में आपने देखा होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आज इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और निश्चय ही आपके जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाएंगे। मैं पढ़ने जा रहा हूं फिलिपियों का किताब, उसका 4 अध्याय का 6 से 9 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। Praise the Lord. The peace of God will remain with you forever. Dear friends, today the Word of God says that God has given us peace. एक शांति को परमेश्वर ने हमें दिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह के अरेस्ट होने से पहले, पकड़वाए जाने से पहले उसके चेले लोग काफी दुखी थे, निराश थे, कई सिचुएशन इस प्रकार का था। उस समय जब हम यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय का 27 पद को पढ़ते हैं, वहां यीशु कहता है, आई विल गिव यू माई पीस। मैं अपनी शांति आपको देता हूं। शांति जो इस संसार में है वो नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आई विल गिव यू माई पीस। एंड वन मोर बाइबल वर्स, इट सेज इन जॉन चैप्टर 14 verse 27, John chapter 16 verse 33, it says, I have told you, in you may have peace in me. मैंने आपसे कहा था कि आप एक शांति को मेरे द्वारा प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, एक शांति एक ऐसा चीज है जिसके बारे में परमेश्वर बताता है, और मैं भी इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है शांति। हम सबको शांति की जरूरत है, हम सबको पीस की जरूरत है। वी ऑल नीड पीस, एंड in order to receive or get the peace, we go around, we spend money, we go to the solitary places, we go to the pilgrimages, we do so many things, we do sacrifices and so many things to get peace. But what is the real peace? What Jesus talks about peace?
जीसस सेज आई गिव यू माय पीस। वो अपनी शांति हमें दिए जाता है। जीसस जिस शांति के बारे में बात करता है, यीशु मसीह जिस शांति के बारे में बात करता है, वो शांति ये संसार की चीज नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। क्योंकि शांति हम सबको जरूरत है, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो, काले हो या गोरे हो, शहर में हो या गांव में हो, कहीं का भी हो, आप कहीं के रहने वाले हो, किसी भी जाति का हो, किसी का धर्म हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, आप कोई भी हो, शांति हम सबको जरूरत है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, हम सबको शांति की आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो यीशु जिस शांति की बात कर रहा है, वो शांति इस संसार की शांति से भिन्न है। What Jesus is talking about peace, that peace is different than the peace we receive in this world by the environment. Like, by the environment we get peace. What we do is, like, we go to the seashore, we sit on the chair, we take the ice cream, sip, and just sit and relax ourselves, and looking around, and just we feel and we experience peace. Is that the real peace? Or else what we do is, we go to the solitary places, like we go to the jungle, we go to the park, and we sit and we just relax ourselves, and we are just feeling a peace. So that is kind of environmental peace. वो एक वातावरण पीस, एक शांति जगह में आप चले गए, शांत वातावरण में चले गए और कुछ समय के लिए आपको शांति मिला। लेकिन जो संसार की पीस है कुछ समय के लिए है, ये टेम्परेरी पीस हमें देता है, टेम्परेरी शांति हमें देता है। जो रियल शांति है परमेश्वर हमें देता है। 3 बातें आपसे बातें करने जा रहा हूं दोस्तों, ये 3 बातें आपसे बातें करेंगी और निश्चय मेरे साथ आप बने रहिए। पहली बातें हैं, पीस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जो शांति है वो परमेश्वर का हम सब के लिए वरदान है। हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर का वरदान है, वो है पीस, शांति। परमेश्वर ने हम सबको गिफ्ट में दिया है, दैट इज हिज गिफ्ट एंड दैट अ फ्री गिफ्ट। सो अगर आपको शांति चाहिए, अगर आप दुखी हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आप चिंता में हैं, अगर आप किसी भी बात को लेकर टेंशन कर रहे हैं और वरीज कर रहे हैं और एंजाइटी में है, जैसा कि हमने फिलिपियों की किताब में पढ़ा है, अगर आप चिंतित हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको शांति परमेश्वर देता है। And you will receive the peace of God because that peace is a gift from God. अगर आप इस पीस को, इस शांति को महसूस करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है। दूसरी बात है, परमेश्वर इस शांति को हम सबको दिया है। That is His desire and His will for all of us to experience His peace. परमेश्वर का ये इच्छा है, ये डिजायर है कि वो चाहता है कि हर एक मनुष्य उसकी शांति को अनुभव करे। और तीसरी बातें हैं वो ये है कि परमेश्वर हमें ट्रबल्स के मिड्स में वो हमें शांति देता है। इन द मिड्स ऑफ ट्रबल ही गिव्स अस पीस। जो तकलीफ परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर हमें शांति देता है। तो 3 बातें हैं दोस्तों। पहली बात है, परमेश्वर जो शांति देता है वो परमेश्वर का गिफ्ट है। परमेश्वर, गॉड गिव्स अस पीस एज अ गिफ्ट। Secondly, God wants us to have peace, and thirdly, God gives us peace in the midst of trouble. मेरे दोस्तों, हो सकता, मुझे नहीं पता आपका जीवन कैसा है और किस परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, लेकिन मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। अगर आप दुख में हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप समस्या में हैं और किसी भी बात को लेकर आप टेंशन है, अगर आपको लगता है आपका मन व्याकुल है, आपको शांति नहीं है, तो ये समय आपके लिए है। परमेश्वर अपनी शांति आपको देना चाहता है। परमेश्वर अपनी सुरक्षा आपको देना चाहता है। परमेश्वर अपनी ताकत आपको देना चाहता है ताकि आप उन परिस्थितियों से ओवरकम हो सके। God wants to give you peace so that you can come out or overcome from the particular situation that you are going through. And it is His promise, it is His will that He wants you to feel His experience of peace, feel the peace experience in your life. So you have to feel His, you have to experience His peace in your life. That is His desire, that is His will. परमेश्वर का इच्छा है, ये डिजायर है कि आप उसके शांति को अपने जीवन में अनुभव करें। And thirdly, He gives us peace in the midst of trouble. मेरे प्रियो, आप जो भी सिचुएशन में हो,
अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो आपको एक शांति देने के लिए जा रहा है। और वो शांति इन्वायरमेंटल शांति नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार नहीं है, बल्कि परमेश्वर का जो शांति है वो हमारी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दुख में भी, तकलीफ में भी, समस्या में भी हमें एक अद्भुत शांति परमेश्वर देता है। उस शांति को आप अनुभव करेंगे आपके सिचुएशन के अनुसार नहीं। Because when you talk about the happiness, when you talk about the peace, people say the peace is a state of mind. If you feel you are happy, if you feel you are good, then you will be feeling good and you will be experiencing the happiness and peace. But that cannot be. But peace is a gift of God, and God Himself, He wants you to experience His peace, and also God gives us peace in the midst of all our troubles, all our worries, all our difficulties, all our sicknesses. He gives us His peace. So dear friends, today you are going to receive His peace in your life. If you believe in Jesus, He is going to give you peace, and that peace will remain forever in your life. That peace does not depend on any situation, does not depend on any environment. मे भी आप किसी भी तकलीफ में हो, समस्या में हो, नाना प्रकार की बातें आपके जीवन में हो रही हो, लेकिन आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो शांति प्रभु आपको देगा, जो आपको बड़ी शांति आपको महसूस करने को मिलेगा। आपको एक बात बताता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 28 पद को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि आप जो बोझ और परिश्रम से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? God says, all who are weary and burdened, come to me, and I will give you rest. This is the promise of our Lord and Savior Jesus Christ. Dear friends, जितने लोग थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, चिंता से दबे हुए हैं, बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, तकलीफों का सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आपको लगने लग रहा है शायद कि चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपको लगने लगा कि आपका जीवन दुख, तकलीफ और समस्याओं से घिरा हुआ है और आप व्याकुल हो रहे हैं और कई प्रकार की बुरी बातें आपके दिमाग में काम करना शुरू कर दिया। अगर ऐसी परिस्थिति से होकर आप जा रहे हैं तो आज ये समय है, यीशु आपको बुला रहा है। This is a general call for each and every one of us. He is saying that come to me, I will give you rest. All those who are weary and carrying heavy burden, come to me, I will give you peace. यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और वो शांति इस संसार का शांति नहीं है जो टेम्परेरी होता है, इस संसार की शांति नहीं है जो इन्वायरमेंट के अनुसार, वातावरण के अनुसार होता है, इस संसार की शांति नहीं है जो पल भर के लिए होता है, बल्कि यीशु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं जो पूरे लाइफ आपके साथ रहेगा, जो किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता, जो किसी वातावरण पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो शांति परमेश्वर का है वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वचन आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाया होगा। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा और मैं चाहूंगा कि परमेश्वर का शांति आपके साथ हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज मुझे इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उन सबके जीवन में कार्य कर, सभी के जीवन को परिवर्तन कर दे, हर एक लोगों को आप आशीष कर प्रभु। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, समस्या में है, उनका दुख, बीमारी, समस्या यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, सबको आशीष कर। आमीन। All right, dear friends, I thank you once again, and I believe that you have receive the God's blessings. So may the Lord bless you. Again, we'll see you tomorrow. Thank you so much.